look about the capacitance of the spherical conductor. From here you can see capacitance of the spherical conductor. Capacitance of the spherical conductor. For that, we are going to consider an isolated sphere, an isolated spherical conductor, of radius small r, suppose small r, of radius small r, having charge q, okay, having charge q. Suppose that the conductor is isolated in vacuum or air. Suppose that the conductor is situated in vacuum or air. So this is your conductor, or this is situated in vacuum or air. So this has a charge q, basically q charge at the center, or this is situated in vacuum, present at its center. Charge is presented at its center. Then the potential at any point on the surface of the conductor is given by, all of you know, the potential of the conductor, at any point on the surface of the conductor, at any point on the surface of the conductor, is given by तो पोटेंशियल कैसे निकालते हो आप? कंडक्टर बेसिकली लुक्स लाइक ए चार्ज पार्टिकल, मतलब स्मॉल साइज पार्टिकल. So 1/4 pi epsilon naught because it is in vacuum, q upon r. This is the potential on the conductor. Okay. Then you can say the capacitance. All of you know capacitance formula is what? C is basically q upon T. So if you put the value of V here, so 1/4 pi epsilon naught, or q upon r. So this is q is going to cancel. So you will get from here C is equal to nothing but 4 pi epsilon naught into r. So you can say the capacitance of conductor, what is the meaning of this? The capacitance of the conductor just 4 pi epsilon naught times of radius of its radius. Okay, 4 pi epsilon naught times of its radius. So this is about the capacitance of any conductor. So which is basically isolated, so isolated spherical conductor, which is basically isolated. Here you can say capacitance of the isolated spherical conductor. Isolated spherical conductor. This is the spherical conductor is just 4 pi epsilon naught times of its radius. 4 pi epsilon naught times of its radius. So this is the capacitance of the spherical conductor. Now we are going to look about the capacitance of parallel plate conductor. Okay,
तो पैरेलल प्लेट कंडक्टर के बारे में अगर हम देखें तो उसका क्या होगा, वो हम पहले की क्लासेस में बात कर चुके हैं। तो एक हमने देखा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटर कितना होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ यू हैव a parallel plate capacitor, this is positive charge. Capacitor is made by the conductor, all of you know. You have to collect two conductor of any shape and put at some distance d, and you have to given the charge, है ना, here. So the electric field, suppose here is air, then electric field is working in this direction. So this is basically electric field. So this is nothing but E naught. E naught is the electric field in the absence of any dielectric material or any conductor here. So the capacitance of this conductor is basically given by C is equal to C naught, means due to the air, C naught due to the air, or Q is the charge divided by V naught. This is the capacitance of this conductor. This capacitor, parallel plate capacitor. नंबर सेकंड, हमने ये भी देखा कि जब हम किसी भी कैपेसिटर प्लेट के बिटवीन में कोई भी क्या पुट कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं क्या चीज पुट कर देते हैं, सपोज कर लो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देते हैं ऑफ थिकनेस डी, है ना, जो स्पेसिंग है उतनी स्पेसिंग की एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देते हैं. तो दिस इज द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं, स्लैब पुट कर देते हैं, तो ये इसके इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करता है. दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा था एयर में, इतना लग रहा था, तब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमने देखा. उसका कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आती है वो बेसिकली कितनी आती है. ये कहाँ से आता है, बेसिकली आपको मालूम है कि E इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. तो यू कैन से E नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर V नॉट कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर E नॉट था और V नॉट है, तो इसको हम और फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज नथिंग बट dV नॉट ओवर dr. ग्रेडियंट मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन. Gradient is the position dependent operator. So d over d are differential operator. It's a differential operator. So this value is this. If you write the magnitude of this system, magnitude मतलब E naught, this is just equal to E naught. Magnitude मतलब not vector. So ये magnitude में negative is gone. So dV naught over dr. Okay. So in magnitude, in term of magnitude, आप बोल सकते हो टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड में हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला हो जाएगा. तो फ्रॉम हेयर और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि E नॉट इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, V नॉट अपॉन R. V नॉट अपॉन dr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D, है ना, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. तो दिस इज फॉर जस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख सकते हैं. तो dV नॉट कितना हो गया, V नॉट. वेरिएशन कुछ नहीं होगा इसमें, अगर ये यूनिफॉर्म है तो dr की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, d हो जाएगी. ये स्पेसिंग, ये टोटल स्पेसिंग. So this can be written in the form of as also. So if you put here Q upon V naught, if you put the value of V naught, so V naught की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो तो यहाँ पर तो ये आ जाएगा Q upon E naught D. So what is E naught? E naught basically क्या होगा आपको मालूम है, E naught is the electric field in between the capacitor plate. E naught electric field in between the capacitor plate in presence of vacuum of air. So as I told you, E naught is basically nothing but sigma upon epsilon naught. Okay, sigma upon epsilon naught. So put the sigma is basically what? Sigma is basically charge density on plate. Charge density on capacitor plate. Capacitor प्लेट की चार्ज डेंसिटी है. अगर इस प्लेट का एरिया A है, इन प्लेट्स का जो एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, सपोज A इज द एरिया ऑफ प्लेट,
is the area of plate, q is the charge on this plate, है ना, q charge है, तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट q upon a area. Okay, so if you put here this value in term of q upon a, इसको लिख सकते हैं हम q upon a epsilon naught. So if you put here q upon a epsilon naught into d, so q to q cancel हो जाएगा, so you will get the capacitance is nothing but just q epsilon naught a divided by d, epsilon naught a divided by d. So this is the capacitance when air is available in between the capacitor plate. What happened if you put the dielectric material inside the capacitor plate, then what is the value of capacitance? Now capacitance is C, it's not C naught, or Q upon V, Q upon V. So again the electric field, net electric field, all of you know, E net कितना लगेगा, E net हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड E0 माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई ई इंड्यूस. ओके, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा इस केस में. ओके, अब इस केस में क्या होने वाला है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये जो ई नॉट था तब था जब उसके कैपेसिटर के प्लेट के बिटवीन में, तो अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो गया बाई सम एन अमाउंट. तो E इज इक्वल टू जो हो गई आपकी ई नेट की जो वैल्यू हो गई इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, वो कितना रिड्यूस हो गया, कितने अमाउंट से रिड्यूस हो गया, ई नॉट डिवाइडेड बाई के, है ना. अगर पहले जब कोई भी वो नहीं था तब कितना उसके ऊपर ई नॉट था, तब आपका ई नॉट कितना था, अगर 10 था तो उसके बाद अगर प्लेट रख दी तो उसके बाद 5 रह गया, इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2, तो के की वैल्यू 2 हो गई. ओके, तो के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हियर. तो अब आप बोल सकते हो ई नेट इतना हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू ई नेट कितना हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई के. तो के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना. इससे प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इससे प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये. तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसकी जो वैल्यू होती है के इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, या तो इसकी वैल्यू 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा ये प्लेट, अब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लेब के बिटवीन में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. तो दिस इज पॉइंट ऑफ मेमोरी, दिस इज पॉइंट ऑफ मेमोरी, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट. तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो अगर आप यहाँ से देखो तो पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन डी, ये आपको पता ही लग गया. तो उतने ही साइज की आपने डी स्पेसिस की आपने डाइलेक्ट्रिक स्लेब लगाई हुई है. तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नेट इंटू डी, E नेट इंटू डी, ये हो जाएगा. तो E नेट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो B की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी कितनी, E नेट इंटू डी. तो E नेट की वैल्यू क्या होगी, E नेट की वैल्यू क्या होगी, वो वही होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना. वो कितनी होगी आपकी ई नॉट की वैल्यू भी वही होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होने वाली है, उसमें तो कुछ अंतर आएगा ही नहीं. तो आप कह सकते हो कि उसकी जो वैल्यू आएगी वो उतनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अब आप बोल सकते हो कि जो आपकी ई की जो वैल्यू है, ई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो कहाँ से निकालोगे आप, ई इज नाउ ई कितना हो गया, ई इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. तो ये हमारा ई आ गया, ई इज इक्वल टू जस्ट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. इतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हो ई नॉट तो कितना है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, तो ई नेट की जो वैल्यू हुई वो इतनी हो गई. ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये वाली वैल्यू इतनी आ गई, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली बी कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ई नेट की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, या बी इतना आ गया. तो पुट द वैल्यू ऑफ बी हियर,
तो C इज इक्वल टू जस्ट Q अपॉन V सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, पुट द वैल्यू ऑफ, मैं ऊपर लिखूंगा थोड़ा सा, तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इसको, इस वाले पोर्शन को यहाँ पे। तो B इज इक्वल टू कितना हो गया, C इज इक्वल टू कितना हो गया, B की वैल्यू ये है, तो C की वैल्यू कितनी हो गई इस केस में, C इज इक्वल टू Q अपॉन B, B इज सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट D, एप्सिलॉन नॉट के सॉरी, तो एप्सिलॉन नॉट के हो गए। अब ये वाली सिग्मा की वैल्यू फिर से पुट कर दो, सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू तो यही है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो Q अपॉन A यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, तो Q से B इधर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A इंटू के डिवाइडेड बाई D, और एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D क्या है, इतना पोर्शन इस क्या है, इतना पोर्शन है हमारा, ये फिर से आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं फिर से ऊपर लिखूंगा, तो ये जो C आया हमारा कितना आया, यहाँ पर देख लेते हैं इसको फिर से आप, तो C जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई, A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाई कितना आ गया D, तो दिस पोर्शन इज अगेन C नॉट, तो यू कैन से, तो ये जो हमारा आ गया यहाँ पर, ये जो वैल्यू आई C इज इक्वल टू C नॉट, आप कह सकते हो दिस इज C नॉट, दिस इज K, तो ये हमारा आ गया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो एक वन लाइन, कैपेसिटेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज बाई, कैपेसिटर increase by how much, increases k times of C naught, तो पहले से बढ़ गया, कैपेसिटेंस पहले से आपका बढ़ गया, तो ये आपने देख लिया जब आपका कैपेसिटर क्या होता है, तो ये पॉइंट आपके मेमोरी में रखने हैं आपने, ये पॉइंट भी आपने मेमोरी में रखने। अब हम एक थर्ड केस लेंगे, ये केस भी हमारा हो गया है, ये केस भी, अब इसमें डाइइलेक्ट्रिक स्लेब हमने कितनी ली, पूरे टोटल उतने स्पेस की ली जितने स्पेस को हमें चाहिए थी। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अलग तरह की डाइइलेक्ट्रिक स्लेब लेंगे जो आपकी डी स्पेस से बहुत कम है, जो कैपेसिटर के प्लेट के बिटवीन में डी स्पेस है उससे कम स्पेस वाली कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लेब हम लेंगे अब आगे वाले उसमें, तो उसमें हम कितनी लेंगे, एक उससे कम स्पेस वाली लेंगे, ओके, तो उससे कम स्पेस वाली लेंगे, इसका मतलब क्या है, तो वो हमने देखना है, तो उससे कम स्पेस वाली जगह अगर हम लेंगे तो तब क्या होगा, तो लेट अस सी, देखते हैं हम अब कैसे करना है हमें, तो एक हम लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक स्लेब पार्शियली फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट, है ना, व्हेन, इसको और ऊपर लिखते हैं जिससे कि आपको यहाँ तक नीचे तक आ जाए, तो कुछ इस तरह का हम लेंगे, व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लेब partially fill the space between parallel plate capacitor पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के स्पेस को पार्शियली फिल करता है, तो पार्शियली फिल करेगा तब आपने देखना है, तो जैसे एक हमारा ये हमारा क्या है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज प्लस चार्ज, दिस इज माइनस, so A is the area of each plate, is same, charge on each plate is Q, here is minus Q. If you are going to put T thickness slab, the thickness of slab is now T, और this spacing is small t, तो अब क्या होगा, पार्शियली फिल करता है, अब क्या होगा, तो आप जानते हो जब नो स्लेब
नो स्लैब, अगर स्लैब नहीं होगा तब आप जानते हो सी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, सी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए डिवाइडेड बाई टी। तो दिस इज यू नो। अगर आपने पार्शियली फिल कैपेसिटर प्लेट इसके अंदर रखी है तो एक चीज और आपने निकाला था अभी, जो आपका ई होगा, ई जो होगा वो कितना होगा, ई नॉट वाई के, दिस इज ऑल ऑफ यू नो, ई नॉट वाई के। जो ई नेट लगता है वो इतना लगता है ई नॉट वाई के, जब आप कोई भी कैपेसिटर प्लेट लग देते हो तो कैपेसिटर के प्लेट के बिटवीन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड between capacitor plate when dielectric material present, ठीक, material present रहता है तब इतना लगता है, ओके। जब प्रेजेंट रहता है तो इतना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है तो इतना लगता है। और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री ना, फ्री प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड when plates have plates free from डाइलेक्ट्रिक से फ्री हो तब ये इतना लगता है। तो अब आपको मालूम है, तो एक चीज और आप ये भी जानते हो कि ये क्या जानते हो कि आपको मालूम है कि जो ई होता है वो क्या होता है, V अपॉन टी होता है, ओके। तो अब जो ई होगा तो अब दो बी हो जाएंगे, यहाँ पर बी कितना हो जाएगा, ई टाइम्स टी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा कुछ इस तरह से लगेगा, तो ई टाइम्स टी, ओके। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की ओर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वो इधर ई नॉट इधर की साइड में लगा हुआ है, आप जानते हो पहले से, पॉजिटिव टू नेगेटिव लगता है। तो एक तो यहाँ पर V इजिकल टू ई नॉट टी हो जाएगा, और जो यहाँ इस रीजन में, इन दो रीजन में जो V लगेगा वो कितना लगेगा, इन दो रीजन में V लगेगा, वो लगेगा, दिस इज V नॉट, सपोज V नॉट, और दिस इज जस्ट इक्वल टू हाउ मच, ई नॉट टाइम्स G आता है ना, E is basically from here, V is basically E into D, E into D, ये आपका B हो जाएगा, B potential is just equal to E into D, तो E naught is the electric field, और D स्पेसिंग कितनी बची, D माइनस T, इतनी स्पेसिंग में लगेगा ये। तो अब आपका टोटल जो पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V नेट जो लगेगा वो लगेगा हमारा, वो लगेगा V प्लस V नॉट, दोनों ऐड कर दोगे तो B इज इक्वल टू हो जाएगा ई टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी, इज इट क्लियर। ये आपका इतना पोटेंशियल हो जाएगा। बट ई आप जानते हो ई क्या होता है, ई इज जस्ट ई नॉट वाई के, तो पुट द वैल्यू ऑफ ई नॉट वाई के इंटू टी प्लस क्या आएगा, प्लस आ जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा ई नॉट डी माइनस टी, ये प्लस आ जाएगा, इसको हम प्लस कर देंगे। तो अब आपको क्या मिला, अब बेसिकली आपको यहाँ से मिलेगा V की वैल्यू मिल जाएगी, ई नॉट कॉमन ले लो तो V की वैल्यू मिल जाएगी, ई नॉट अगर हमने कॉमन ले लिया तो टी वाई के प्लस डी माइनस टी, तो इतना D मिल गया। इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर तो B इक्वल टू मिल जाएगा ई नॉट डी माइनस डी माइनस टी प्लस टी वाई के, माइनस टी प्लस टी वाई के, ये मिल गया, B की वैल्यू ये मिल गई। अगर आप ई नॉट की वैल्यू ही पुट कर दो, ई नॉट की वैल्यू ही पुट कर दो तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हो ई नॉट की वैल्यू, तो ये मैं आगे लिखूंगा थोड़ा सा। तो दिस इज फ्रॉम हेयर, तो आपको यहाँ से मिल गया। तो अगर आप B को ऐसे लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी प्लस टी वाई के, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो ये वाला हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली D मिल गया, और कैपेसिटेंस होता क्या है इस सिस्टम का, कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल टू कितना होगा, Q बाई V, ये होता है। तो B निकालना होता है हमें, और कुछ नहीं निकालना होता। तो Q B निकाल लिया, कितना है
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी प्लस टी वाई के, ये आपका हो गया। तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज द सिग्मा डी माइनस टी प्लस टी वाई के, ऐसे लिख सकते हो। चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया। तो फाइनली यू विल गेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर प्लेट, है ना। ये आपका यहाँ पर कैपेसिटेंस मिल गया। ये कितना मिल गया, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और डी माइनस टी अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के, ये आ जाएगा। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। के इज हियर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये कैपेसिटेंस हो गया, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस इतना हो गया। तो इफ डी इज इक्वल टू टी हो जाए, डी टी के इक्वल हो जाए तो आपका पुराना वाला रिजल्ट मिल जाएगा। अगर डी टी के इक्वल हो जाए तो यहाँ से आप कॉमन ले लोगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो आपका पुराना वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस रिजल्ट से आप और भी वो सारे रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो इस रिजल्ट से आप वो भी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप कर देते हो, सपोज कर लेते हो, आप इसमें पुट कर देते हो डी इज इक्वल टू टी हो जाता है, तो सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट और डी कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी डी रख जाएगा, यहाँ भी डी हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई के। तो आप कह सकते हो इसको, ये कैंसिल हो गया, तो जो वही वाला रिजल्ट आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाई डी। तो ये आपका वही रिजल्ट आ गया जो पहले निकाला था। तो आपकी अगर कोई कैपेसिटर प्लेट इस तरह की है तो आप इसको वो रिजल्ट आप निकाल सकते हो। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये मैंने निकाला। अगर सपोज कर लो एक और केस आएगा इसमें, एक लास्ट केस है इसमें, पैरेलल प्लेट वाला लास्ट केस और करेंगे हम। तो ये वाला था इतना, तो लास्ट केस और है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप वो लास्ट वाला केस करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आप उसको लास्ट वाले केस को कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उस लास्ट वाले केस को सॉल्व करेंगे।